The protagonist spent a significant amount of time navigating the structure heavy world of commerce. Academia was the safe path. It felt like wearing shoes that did not fit. The stress of college was not about just about the syllabus, it was the silence of creating heart being suppressed. Everything changed when she started observing the journey of Yogesh Rawat. It was not just about a contestant on a show like a Splitsvilla. It was about the archetype that he represent, someone who stepped into the world of modeling and auditions to find a connection, purpose, and a career. For her, you become a mirror. Seeing his transition and his presence in the industry made her realize that her obsession with the YouTube and TV was not just killing time, it was unconscious research. She was not just watching, she was learning the craft, the vibe, and the life she actually wanted. The most pivotal moment happened when she spoke her truth instead of judgment. She found parental support. This validated acting as bridge connecting her childlike excitement, the pure unfiltered joy, with the professional goal. She stands at crossroads. One side is a stressful commerce past, on the other is a positive, vibrant future in the media modeling industry. It's a real, just a dream. The answer lies in the fact for the first time in the year, her mind feels aligned and peaceful rather than cluttered and anxious. अगर हम इसे एक मूवी की तरह देखें, हीरोइन को पता है कि मंजिल कहाँ है, पर रास्ता धुंधला है। वो अपने माँ-बाप के आशीर्वाद लेकर निकली तो है, पर अब उसे एक गाइड की तलाश है ताकि वो भटक ना जाए। मैं यहाँ ये करना चाहती हूँ, पर मैं जल्दबाजी में गलत कदम नहीं उठाऊँगी। मैं पहले इसके बारे में सही ट्रेनिंग लूँगी। ये सज़ा नहीं है, ये एक अवेकनिंग है। जब हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं, तो हमारा मन हमें इस तरह दर्द देकर वापस बुलाता है। Late night, protagonist sits surrounded by the books that feel like heavy stone commerce. She watches a screen where people are transforming their life, a blind singer finding his vision through music, a background artist becoming a star. मैं यहाँ क्यों थमी हुई हूँ? दुनिया कितनी बड़ी है, लोग मिट्टी से भी सोना बना रहे हैं और मैं सिर्फ डर रही हूँ। डर रही हूँ कि लोग क्या कहेंगे, डर रही हूँ कि मेरी बॉडी कैसे दिखेगी, डर रही हूँ कि मैं उन क्रिएटर्स की भीड़ में खो जाऊँगी। She loves cooking, but the camera feels heavy. She loves the spotlight, but the mirror feels like an enemy. Every successful person she feels like Aligoni Yuk feels like a reminder of the 5 years she thinks she wasted. She realizes that her tears are not for the past, they are for the potential that is still alive inside her. The shivering and the crying is her body a way of releasing the old stress to make a room for new beginning. द ऑब्जर्वर कर्स, एक लड़की जो एक लिविंग लाइब्रेरी की तरह है, उसके पास हज़ारों लोगों की जर्नी का डेटा है यूट्यूब टीवी से, लेकिन उसकी अपनी किताब का पहला पन्ना भी खाली है। वो जहाँ देखती है उसे लगता है ये तो हो चुका है। वो कुकिंग देखती है तो लाखों क्रिएटर्स दिखते हैं। वो मॉडलिंग देखती है तो उसे भीड़ दिखती है, उसे लगता है कि दुनिया फुल हो चुकी है। एक दिन वो समझती है कि इन्फॉर्मेशन और एक्शन में फ़र्क होता है। हज़ारों लोगों को देखना ज्ञान है, लेकिन उनमें से सीख कर अपना एक विज़न निकालना हुनर है। वो ट्राई करती है, अब दुनिया को नहीं देखेगी, वो सिर्फ नेक्स्ट स्टेप देखेगी। वो भीड़ का ऐसा नहीं बनेगी, वो भीड़ के लिए लिखने वाली बनेगी। स्क्रीन्स पर ढेर सारी कॉमर्स की बुक्स, कैलकुलेटर और स्प्रेडशीट दिखती हैं। रोशनी थोड़ी कम है। प्रोटैगनिस्ट एक टेबल पर बैठी है, सर पकड़े हुए। कॉमर्स, अकाउंट्स, नंबर सब कहते हैं ये सेफ रास्ता है, पर मेरे लिए ये एक जेल जैसा है। 5 साल मैंने बस यही सोचा कि शायद मुझ में ही कोई कमी है। प्रोटैगनिस्ट अपने फ़ोन पर स्प्लिट्सविला या योगेश रावत की वीडियो देख रही है। उसके चेहरे पर एक अचानक चमक आती है। वो उठकर आईने के सामने खड़ी होती है। ऑडियो फिर मैंने उसे देखा कि एक कॉन्टेस्टेंट, एक सफ़र, और अचानक वो मेरे अंदर की वो बच्ची जाग गई, वो जो टीवी देखकर कहती थी मुझे भी वहाँ होना चाहिए। वो सपना जो मैंने रियल लाइफ के चक्कर में कहीं दबा दिया था। तेज कट्स दिखते हैं, कुकिंग करते वक्त कैमरा सेट करना, डांस की कोशिश करने पर रुक जाना, रोना और ठंड लगना। प्रोटैगनिस्ट की हार्टबीट की आवाज़ तेज़ हो जाती है। डर लगता है। लोग कहते हैं कि रास्ता पहले ही भरा हुआ है। बहुत क्रिएटर्स हैं, बहुत मॉडल्स हैं। हार्टबीट तेज़ हो जाती है, रोना आता है। लगता है शायद ये कोई पुरानी सज़ा है, पर क्या ये सज़ा है? यह मेरे अंदर के कलाकार की तड़प है। एक सॉफ्ट लाइट सीन, प्रोटैगनिस्ट अपने पेरेंट्स से बात कर रही है। पेरेंट्स स्माइल करते हैं और उसके साथ हाथ थमाते हैं। जब मैंने हिम्मत करके अपने पेरेंट्स से कहा तो उन्होंने मेरा हाथ थमा लिया। उनके पास इंडस्ट्री का ज्ञान नहीं है, पर उनके पास मुझ पर विश्वास है, और वही विश्वास मेरा सबसे बड़ा गुरु बन गया।
प्रोटैगनिस्ट एक खाली डायरी खोलती है और अपना पहला शब्द लिखती है। वो कैमरे की तरफ देखती है, इस बार डर नहीं, एक उम्मीद। लोग कहते हैं कि मैं लेट हूँ, लोग कहते हैं 5 साल वेस्ट हो गए, पर मैं कहती हूँ मैं तैयार हो रही हूँ। ज़ीरो से स्टार्ट करना बुरा नहीं, क्योंकि ज़ीरो से ही हर गिनती शुरू होती है। स्क्रीन ब्लैक होती है, वाइट टेक्स्ट में लिखना आता है, अब तो सिर्फ शुरुआत है। एक हल्का सा अनुमान का वजन बैकग्राउंड के में धीरे-धीरे चलता है।